Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this new day, Lord. Thank you for your love, your grace, your mercies. Lord Jesus, thank you for bringing us here to worship you, to glorify you, to hear your voice, Lord. You have been with us in the past. You are here with us today, and you will be with us forever. Lord Jesus, all your promises for us in our lives are yes and amen. The word says, those who seek you shall lack nothing, Lord. You always make a difference between the people who seek you and the people who does not seek. Lord Jesus, we have been seeking you till now. And Lord, we commit. Ahead also we would be seeking you to know your will, to walk in your way. Lord, lead us, guide us. Keep your loving eyes on us so that you are there with us in all the ways we walk. Instruct us and teach us in the way we should. You keep in perfect peace whose mind is stayed on you, Lord. Give us your peace because your word says in the world we have tribulations, but you have overcome this world. The peace of God which surpasses all understanding, let that peace be over here and fill each and everyone over here and would be watching us online. Lord Jesus, you speak through your servant. Let this word bring healing, a change in the lives of everyone who's hearing it. Today also, Lord, we may be behind in so many things, not knowing where to go, not knowing what's the issue, not knowing why we are so back, not knowing what is the solution to our problems. But Lord, the moment we speak your word, the moment we call unto you, everything gets changed because you are the solution for all our problems. Your word says, come to me all who are weary and heavy laden and I will give you rest. Cast your cares on the Lord and he cares for you. You have greater plans for us than what we can plan, think or imagine. The word says in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have towards you, plans to prosper you, to give you a future and a hope and an expected end. Lord, your plans are bigger than us. Your ways are mightier than ours. We praise the name of the Lord who does exceedingly abundantly more than we ask, think or imagine according to the power that is work in us. Lord Jesus, help us to live a life the way you want so that we don't miss anything what you have in store for us. I pray for the people who are broken. I pray for the people who are sick. I pray for the people who are in financial difficulties. I pray for the people who are in relationship problems. I pray for each families. Lord Jesus, you send your word and you heal your people. You send your word and Lord Jesus, you change every aspect of their life. Today I surrender all the people who are here and watching us. Let their lives be changed. I ask all this prayer in your holy, mighty, matchless name I pray. In Jesus Christ's name I pray. And the church said, Amen, Amen, Amen. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी
निराशा हो मैं, मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु मेरी निराशा हो मैं, मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा। जाए जान भी देना पड़े,
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, रहे उसी काल है, वो बड़े में घटूं, रहे उसी काल है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसी में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसी में आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझ
मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास। मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थके चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ।
जीवन का सौदा है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर दिनों के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु का अनुग्रह हमारे सबके ऊपर है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम आए हैं स्तुति आराधना करने के लिए, उसके वचन सुनने के लिए, और वचन सुन के हम प्रसन्न हो, यही प्रभु ईश्वर का, पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु का यही आज्ञा है। यही हमारे जीवन में हर एक दिन उनकी नई उजाला आती है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं 10 घड़ी प्रभु यीशु के पास आती है, उसमें से प्रभु यीशु कहती है कि जाओ, जाके याजकों को दिखाओ। और जाते जाते रास्ते में से एक कोड़ी शुद्ध होके प्रभु यीशु के पास आती है और कहती है, प्रभु को धन्यवाद करती है। प्रभु यीशु कहती है कि एक को छोड़ के और 9 क्या चंगे नहीं हुए। उसमें प्रभु यीशु प्रसन्न होते हैं और दुख भी होते हैं। इसलिए हम सब जो भी हमारा जीवन में चमत्कार, चिन्ह चमत्कार होते हैं, हम उसको धन्यवाद करते हैं और उसे बिनती दुआएं करते हैं। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर आती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान,
देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बढ़ जाती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बढ़ जाती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Let's read Psalms 23. The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will never fear. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and loving kindness shall follow me all the day of my life, and I will dwell in the Lord's house forever. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भजन संगीता 23 पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चढ़ाइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। स्तोत्रम। ऐसा पढ़े हमको जीसस ने बचाया। कैसा बचाया? गांव जाके 1 महीना रह के आया था। बहुत जुलाब हो रहा था, 10 दिन से हो गया। और मेरा लड़की ने हॉस्पिटल में ले गया था। इधर का दवा 2-3 डॉक्टर से लिया, क्लियर नहीं। 2-3 हजार खर्चा हो गया, क्लियर नहीं। फिर मेरे को चलने की भी नहीं हो रहा था। फिर मेरी लड़की लेके गया साई हॉस्पिटल काटेनगर।
लेके गया तो कम से कम रोज का है ना 5 ग्लूकोज 6 ग्लूकोज 10 ग्लूकोज होता था रोज का 6 दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने मेरे को बहुत अच्छा संगा कर दिया। गया हफ्ता तक था, अभी क्या आया का प्रेयर का दिन मेरे को गवाह देने का था। इसके लिए परमेश्वर को कोटि 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 स्तोत्र। हालेलुया। Hallelujah. कैसे आए सब आप लोग? How are you all? आज इधर कैसे? काफी टाइम ठीक है। सो अच्छा है जब कोई आके साक्षी देता है। It is good when someone comes and gives a testimony. तो साक्षी दिया, पास्टर को सब दिन ताली बजा के अभी आप लोग तो ये हफ्ता पूरा न्यूज़ सुने रहेंगे। Y'all would have heard the news this week. कोई यहाँ पे बॉम्ब डाल रहा है, कोई वहाँ पे बॉम्ब डाल रहा है। Where there are bomb blasts. न्यूज़ देखते कि सिर्फ सास भी कभी बहू थी वही देखते रहते घरे बैठ के? Are you all watching the news or just watching serials? हाँ, चित्ती चित्ती सीरियल वही देखते रहते घर पे बैठ के कि तुम लोग न्यूज़ भी थोड़ा देखते? अरे आया ना जल्दी बोलो। न्यूज़ नहीं देखते? अच्छी बात है। कभी कभी न्यूज़ देखना भी अच्छा रहता है, नहीं देखना भी अच्छा है। Sometimes it is good to watch news Tension. and sometimes not. ठीक है, अभी दुनिया में माहौल सही नहीं है, हर जगह पे बॉम्ब डाले जा रहे हैं। The things what we hear now in the world is not good. अभी आप लोग कैसा ही न्यूज़ देखते पता नहीं, How do you all watch the news? I do not know. पर मैं कैसे देखता वो अलग तरीका रहता है। But the way I see it, it is different. मैं ये देखता हूँ कि कौन सा कंट्री कितना पावरफुल है और किसके पास क्या रिसोर्स है, कौन किसको मारने के बाद किसको क्या मिलता है। I always see that who is more powerful, which country has sufficient resources, and after some disaster happens, what is left behind and how are the actions taken. सो अभी जो भी हो रहा है ना, So whatever is happening right now, ये बाइबल के अनुसार हो रहा है अभी। it is all according to the Bible. हालेलुया। Hallelujah. सो अब मेरे को आपसे सवाल है। Now I have a question for you all. आप फोन यूज कर सकते हैं। You all can use your mobile phones to answer this फर्स्ट question. वर्ल्ड वॉर कभी हुआ? जल्दी बताओ। When was the first world war which happened? फोन यूज कर लो, You देखो all गूगल can में। use your phone and answer me. मालूम आपको कितना? 39 में हुआ ना पहला। दूसरा 39 में। क्लैप करो, करेक्ट है। दूसरा मतलब चुप चुप के न्यूज देख लेते। हाँ, पहला वॉर कभी हुआ? When was the first war? जो सही पहला वॉर का डेट बता देगा ना, The one who answers right. उसको मेरे तरफ से जुलाई 1914। वो तुम लोग गूगल दिखा रहा ना। सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कभी हुआ नहीं क्या? First war took place. हाँ, 28 जुलाई 19। सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 12/7/12 हुआ है। First Everyone? world war took place, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ गूगल में, which is not recorded in Google, पर बाइबल में रिकॉर्डेड। but it is recorded in the Bible. रेवलेशन Revelation 12 में 7 से लेके 12 तक पढ़ो। chapter 12. और जो भी आंसर दिए गूगल को देखे वो सब सही है, राइट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 28 जुलाई 1914 और नवंबर 11 में खत्म हुआ था वो। 12. रेवलेशन 12 में 7 प्रकाशित वाक्य से लेके 12 तक। chapter 12 verses 7 to 12. Let's read. तीन शहर में हाँ, लड़ाई हुई। किधर हुआ लड़ाई? Where हालेलुया। the war broke out. तो पहला लड़ाई कभी स्टार्ट हुआ?
When did the war start? कभी स्टार्ट हुआ? When? रेवलेशन 12:7 में स्टार्ट हुआ है। It started in Revelation chapter 12 verses 7. समझ में आ रहा आप लोगों को? Are you तो able to ये understand? वॉर, ये जो अभी जो एक दूसरा देश को मार रहा है, Now the war which is taking place and people are defeating each other. बॉम्ब डाल रहे, कभी ये डाल रहे, मिसाइल डाल रहे, रॉकेट छोड़ रहे, ये सब हो रहा है। There are various kinds of things which they are with attacking. इन लोग को ये सब सिखाया कौन? Who taught them? कभी सोचा आप लोगों ने? Have you ever thought about it? इन लोग को ये झगड़ा करना ये सिखाया कौन? Who taught them to war? मैं आप लोगों को बोला ना, मैं न्यूज अलग सा देखता हूँ, I see different. तो मैं ये देखता हूँ कि इन लोग को ये आइडियाज दिया कौन? Who gave them the ideas? तब मुझे मालूम पड़ा जो पहला वॉर हुआ था ना ऊपर, When the first war took place, जब एंजल के साथ लड़ने लगे, when there were war between angels, तब वो जो फॉर्मूला, the formula which took place there, वही फॉर्मूला अभी हम इंसान को बांटा गया है, the नॉलेज। same formula has been used within human beings. ये अपने देश अपने को ही मार रहा है। Our own country is defeating us. हालेलुया। जो स्वर्ग में वो टाइम पे परमेश्वर के जो देवदूत है, In heaven, the angels of God, उन लोग ही आपस में लड़ने लग गए। they are fighting themselves, within themselves. तो आप लोग ये सोचो, You all think आपको मारने के लिए बाहर से कोई आने नहीं वाला है, nobody would come to defeat you from तो आपको outside. मारने वाला कौन है? Who is going to defeat you? कौन है? क्या क्या है? बाहर से तो कोई आके मारने वाला नहीं। Nobody is going to come. अगर रेवलेशन पढ़ेंगे ना, If you read तो Revelation, जो गॉड ने जिसको क्रिएट किया था ना, the God who created the angels, उन लोग ही अपोज हुए। they themselves went against God. समझ में आ रहा है? तो एक चीज क्लियर है, One thing is clear, आपसे लड़ने वाला बाहर नहीं है, आपसे लड़ने वाला, आपको डिफीट करने वाला, आपको कमजोर करने वाला, आपको नष्ट करने वाला, आपको बर्बाद करने वाला कौन है? the one who is going to defeat you, the one who is going to weaken you is not someone from outside. Who are they? तो कौन है वो लोग? Who are they? अरे बोलो यार, पता है तो। Who are they? If you all know, answer it. बाहर से नहीं तो कौन है? Who then? हाँ? बाजू वाला अपने लोग है। हालेलुया। सो आप लोग ये ध्यान में रख लो, Keep this in your mind. आपको डिफीट करने वाला कोई अपना ही रहेगा। When you are getting defeated, it's from your own people. समझ में आ रहा है आपको? वो आपका भाई रह सकता है, It can be your brother, आपका बहन रह सकता है, your sister, आपके बच्चे लोग रह सकते or हैं, your children, माता पिता रह सकते your हैं, parents. आपके साथ वाला ही कोई रह सकता है It बस। can be somebody from your own kin. कि यही परमेश्वर बोला कि अंत दिनों में यही होने वाला है। God said this, that it is going to happen in the last days. तो और अभी सोचो, कभी कतार में बॉम्ब डाल रहे, कभी इजराइल में डाल रहे, ईरान में डाल रहे, यूएस का प्लॉट बर्बाद हो रहा है, ये सब जो भी हो रहा है पॉलिटिशियन में। Whatever is happening, there are bomb blasts in different places now. ये दूसरा देश में हो रहा करके शांत मत बैठ जाओ, Don't be silent thinking that it's happening in some other country. ये हमारे साथ भी हो सकता है। It can happen with us as well. ये अपन को रॉकेट भी नहीं चाहिए, We don't need a rocket. ये छोटा सा बॉम्ब पल्लाव में डालेगा तो If there is one bomb blast in Palau, फेज 1 फेज 2 में नहीं, फेज 2 में गिरा, if it is on phase 2, आप बच जाएंगे। आप फेज 1 के आगे है ना, हम लोग गए वैसे भी कुछ काम के नहीं है। हम लोग जो जो काम के हाथ उठाओ देखेंगे काम पर। हालेलुया। hallelujah. तो बाइबल में ऑलरेडी लिखा है ये सब चीज। It's written in the word. क्या लिखा है? What it is written? कि अंत दिनों में एक देश दूसरे देश के विरोध हो जाएगा, That in the last days, one country will rebel against another country. घर वाले आपस में ही एक दूसरे की जो हो रहा है। People will against you from your own family. ये सब नया नहीं है अभी। It's not new. इसके लिए परमेश्वर बोलता है ये सब चीज से तुम ना बच के भाग जाओ, That's why God says you be away from all these things and be safe. क्योंकि 7 साल तक
कोई दूसरा कोई आके राज करने वाला है। Because for 7 years, someone else is going to come and reign. वो क्रिस्त के खिलाफ रहने वाला है। They are going to be against Christ. क्या? किसके खिलाफ? Against Christ. यीशु मसीह के खिलाफ रहने वाला है को बोलते हैं एंटी क्राइस्ट। The one who's against Christ, they are called Antichrist. उसके बारे में दानियल में लिखा है। It is written about him in मैं the book of आपको छोटा Daniel. छोटा इसमें समझाऊंगा, पर मैं आई विल मेक श्योर कि मैं पूरा आपको पिक्चर दिखा दूंगा एक। I will teach you all in bits and parts, but I will show you a clear picture. सो उसके पहले Before that, हमारी आप लोग न्यूज़ सुने रहेंगे बहुत सारे you would have heard a lot of news about कि बहुत सारे परमेश्वर के काम करने वाले लोग भी मारे गए। the people who are serving God are being killed. वो भी होना ही है। That is also written. वो भी लिखा है कि अंत दिनों में That is also written in the end days. जो परमेश्वर के लिए काम करेगा The one who works for God, वो मार खाएगा, they will be उसका निंदा होएगा they will be और insulted, वो मर भी जाएगा मेरे लिए। and they may be killed for me. हालेलुया। सो एक तरफ वो चल रहा है, One type that is going, एक तरफ हम उनके परिवार के लिए we have to pray for their family, जो भी अपने को खो दिया है the one who have lost their own. और जो भी चल रहा है उस सिचुएशन के लिए हम प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। And for that situation, we are required to pray. जो चल रहा है ऐसे चलने तो ऐसा लाइफ नहीं जी सकता, You can't be like that, let it happen, whatever happened with them. क्योंकि हमारा जो विनती परमेश्वर सुनता है। Because our requests are being heard by God. कौन सुनता है हमारा विनती? Who hears our request? तुम्हारा अपना कोई सुने या नहीं सुने, Your own may or may not listen. पर आपका विनती परमेश्वर सुनता है। But God hears. हम यहाँ पे सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, We are here to pray for peace. इसके लिए परमेश्वर हमें रखा है। That's why God has kept us alive. हमें तलवार लेके भागने के लिए नहीं बोलते। Not to get a sword and run. हालेलुया। हम अगर एक जगह पे रहेंगे ना, If we are at a place, वो जगह सुख और शांति के साथ भरा हुआ रहने चाहिए। that place should be filled with peace. तो इसीलिए परमेश्वर उनके लोगों को चुन के हर देश में एक को डालते हैं, That's why God chooses people and puts them in different nations. ताकि बैलेंस बना रहे। That's so that it is balanced. पर आज हम सब मिलके विनती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Today we all together are going to make a request. to परमेश्वर God. से ये विनती करना है We are going to make a request कि देश में सुख और शांति बरकरार रहे, that there should be joy and peace in this nation. और जब तक आपका प्रेयर ऊपर नहीं जाता है Until the time your prayer won't go up, तब तक आंसर मिलेगा नहीं। you will not be answered. कितने लोग चाहते हैं कि देश में सुख और शांति बने रहे, How many of you all desire that should ताकि be हमारे peace and joy बच्चे in our nation? सेफ रहे, So that our children are safe, हमारा घर सेफ so रहे, that our house is safe, मिनिस्ट्री सेफ our रहे, ministry is safe, चर्च सेफ रहे। our church is safe. अगर आप लोग चाहते हैं If you all desire तो that, अपने आंखों को बंद करो then close your eyes और परमेश्वर के सामने आज विनती करना हमें, and you make a request in front of God. और पूरे सच्चे मन से और दिल से विनती करना है, And with your whole heart, you make this request क्योंकि वो विनती सुनने वाले परमेश्वर है। because He is the one who hears your prayers. और आज आप जो भी विनती यहाँ पे देने वाले, And whatever request you are bringing here today, वो परमेश्वर सुन के God will hear it और उसका उत्तर भी देंगे। and He will answer you. तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, ओ ये वचन काफी है, प्रभु ये वचन काफी है। बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। आप मेरे संग सब जन, बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले,
स्तुति हो, यीशु राजा, तेरी स्तुति हो, यीशु राजा, करुणा निधि, तारनहार, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि, तारनहार, चमत्कार करने वाले, प्रभु चमत्कार करने वाले, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, प्रभु ये वचन काफी है, प्रभु ये वचन काफी है, விண்ணப்பத்தைக்கே பவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, சோத்திரம் ஏசையா, விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் இயேசையா. உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். Come on, church. உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், என் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் இயேசையா. இயேசையா. हालेलुया। परमेश्वर से कोई कार्य नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं। It is not that anything is impossible for our God. ऐसा लगता है कुछ उनसे कुछ चीज नहीं हो सकता। Is it possible that you all can think that he can't do this? कुछ एक चीज बता दो जो उनसे नहीं हो सकता। Can you all tell one thing that he cannot do? सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता है उनसे, एक चीज नहीं हो सकता उनसे, वो है One thing वो God खुद cannot की do. महिमा स्तुति नहीं कर सकते, He cannot glorify himself. इसलिए हमें बनाया है। That is why he made us. हालेलुया। इसके लिए जब भी आपको मौका मिलता है उनकी स्तुति और उनकी महिमा करने, That's why whenever you get an opportunity, you should तो praise and पीछे मत worship. हटो। Do not go back. हालेलुया। क्या नहीं करने का? What you should not do? क्योंकि वो एक ही चीज वो खुद अपने लिए नहीं कर सकता, That is the one thing he cannot do. और वो for चाहता है himself. कि उसके बच्चे लोग उनके लिए करें। And he desires that his children should do for him. इसलिए जब भी हम परमेश्वर के लिए गीत गाते हो, That's why whenever we worship, जब भी प्रार्थना करते हो, whenever we pray, पूरे तन मन सब जो भी है आपसे करो। with your whole heart and mind and body, you should pray. समझ में आपको? Are you all able to understand? हम दानियल के वचन पे ध्यान देंगे। We will focus on the book of Daniel. क्या होने वाला आने वाले दिन पे मैं आपको बताने वाला हूँ, What is going to happen ahead, I'm going to talk जो about. ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें बता दिया है बाइबल के द्वारा। What God has already told us from the Bible. दानियल 9 में 27,
Let's read in the book of Daniel, chapter 9, verses 27. वो प्रधान एक सप्ताह के लिए हाँ बहुत के संग दृढ़ वाचा बांधेंगे, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बोली और अन्न बोली को बंद करेगा और कुंगेरे और उजाड़ने वाले घृणित बोझ को दिखाई देंगे और निश्चय ही ठानी हुई बात के सप्ताह होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हालेलुया। Daniel chapter 9, verses 27. Then he shall हाँ confirm a covenant हाँ with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, आप घर पे जाके पढ़ लो। ये टॉपिक आपको आराम से घर पे बैठ के स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपके लिए आपके फ्यूचर में क्या होने वाला आपको अभी समझ में आएगा। If you'll read and meditate on this step by क्योंकि step, you would understand what will फ्यूचर happen. लाभदायक नहीं नुकसानदायक है। Because the future is not glorious, there are going to be destruction. क्या है? फ्यूचर आपको लॉस देने वाला है। आपको लॉस किधर कभी क्या होने वाला आपको वो आपको मालूम पड़ना चाहिए। Where you are going to lose, what is going to happen, all these you should be aware of. हालेलुया। तो ये जब एंटी क्राइस्ट इधर आएगा, When Antichrist would come जब वो राज लेगा and when he would be reigning, और सही में वो राज लेने वाला है, and he will be reigning, वो 7 साल का कवनेंट बनाएगा। and there would be a covenant of 7 years. कितना? How many years? 7। ये नंबर याद रख लो Remember this number. क्योंकि यही गोली मतलब हमको देते 7 जन्म तक मैं तेरे साथ रहूंगी। Because this is what people say. जब भी कोई ये डायलॉग मारता है ना 7 जन्म 7 मिनट नहीं रह सकता तेरे साथ, तू 7 जन्म का बात कर। हालेलुया। Hallelujah. ये 7 जन्म का गोली मत लो। I'm telling you. Don't be fooled by the 7 years. आपको तो मिला रहेगा सबको मिलता है 7। ये एंटी क्राइस्ट भी ना ऐसे ही 7 जन्म का रिश्ता बांध रहा था। Here also there is a 7 years covenant of Antichrist. बोला कि 7 साल ना मैं तुम लोग का ये कर दूंगा, मैं तुम लोग का वो कर दूंगा करके गवर्नमेंट पकड़ने के लिए, पूरा दुनिया को राज करने के लिए ये कवनेंट बनाएगा वो। He will try to capture the government for 7 years. 3.5 साल तक प्यार मोहब्बत से रहेगा। For 3.5 years he would be good. उसके बाद वो कलर दिखाने लगेगा। That after that he will show his true colors. हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है We will not be able to understand कब फंस गए अंदर। when we got into this. हालेलुया। मीठी मीठी बातें तो चालू रहता है फर्स्ट टाइम। All sweet things would be spoken at the first time. तारे जमीन पर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भले आपको कोई छोड़ के जाए मैं नहीं छोड़ूंगी, जो भी है तुम लोग देख लो, तुम लोग के हिसाब से कन्वर्ट कर लो जो भी। So many things, fake promises which they make. पहला देखो तो पहला गायब होने वाला वही बंदा रहता If there is a problem, that person would disappear first. है। ओह माय गॉड। ठीक है, ये एंटी क्राइस्ट भी ना वही फॉर्मूला यूज कर रहा है। Antichrist will also use the same formula. वो भी 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। देखो He is also making a 7 years कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका, अभी मैं तुम लोग को इजी वर्ड में बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो कवनेंट बनाता है It is a covenant कि 7 साल तक मैं तुम लोग को राज करूंगा that for 7 years he will reign. और मेरे राज्य में सब अच्छा रहेगा। And they all will be good for the 7 years. क्या रहेगा? सब अच्छा रहेगा। Everyone will be good. स्टार्ट में सबको फंसाएगा वो, In the beginning, he will put everyone सबको फंसाएगा। He will put everyone हम भी into फंसने वाले ही हैं, याद रखो। Even we are going to be in जब trouble. 3.5 साल तक वो शांत रहेगा, For 3.5 years, he would be silent. उसके बाद वो उसका कलर दिखाने लगेगा। After that, he will show his true colors. और सच्ची बोल रहा हूँ, वो चीज में तक परमेश्वर खुद बोलता है कि तू उस जमाने में मत रह कर। God himself is saying that you should not be in जो that ये era. पृथ्वी पर राज करने वाला है ना,
when he comes to reign, और वो टाइम पे परमेश्वर ही खुद बोलता है कि तू वो राज्य में मत रहे। God is saying that you be not in that era. मैं नहीं बोल रहा, अभी मैं आपको दूसरा वचन देता हूँ। And- लूक 21:36 में पढ़ो। Luke chapter 21 verses 36. Let's read. इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो, और हर समय हाँ, हर समय। प्रार्थना करते रहो हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बांचने और मनुष्य के पुत्र के सामने हाँ खड़े होकर हाँ योग्य बनो। हाँ, हालेलुया। Watch therefore and Ah. pray always Ah. that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. हालेलुया। Hallelujah. ये भी जो भी घटना अभी घटने वाला है ना, Whatever things which are going to परमेश्वर खुद बोलता है कि उस घटने से तुम एस्केप हो जाओ, God is saying that you should be escaping that क्योंकि आने वाला जमाना बहुत बहुत कठोर है, कठोर। because the days ahead are very difficult. आप लोग को थोड़ा भी अंदाज नहीं क्या होने वाला हमारे साथ। You all have no idea what is going to happen with us. जो भी होने वाला है, सबसे बुरा होने वाला है, यही बोल सकते। Whatever is going to happen, the worst thing will happen. पहले से बुरा ही चल रहा है, First only we have so many things. इसके ऊपर और बुरा ही बोला तो कहाँ। Despite this, what more we can face? हालेलुया। Hallelujah. उस चीज से बचना है। You have to be away. कितने लोग को बुराई में वो दिन को देखना है How many of you all want to see that day जहाँ एक दूसरे को मार रहे, where people are killing each other? भूख के लिए कुछ भी कर रहे, For hunger they are doing कौन anything. किसके साथ भी कुछ भी कर सकता है। Anybody can do with कभी anyone. कभी anything. तुम्हारा आंख छीन लिया, Sometimes they can take away your eyes. तुम लोग ने जो भी सोचा भी नहीं रहेगा ना, उस टाइम पे वो सब होने वाला, याद रखो। What your mind cannot think, that will happen. At इसके that. परमेश्वर खुद बोल रहा है कि उस टाइम में तुम लोग मत रहो। God is saying that you should not be in those days. हालेलुया। Hallelujah. भाग जाओ। You escape. कितने उनको उस दिन देखना ही नहीं। How many of you all want? not सच्ची to बोलो तो see मुझे that? नहीं देखना है। कितने कितने लोग को नहीं How देखना many है? of you all do not want to see? नहीं देखना है तो उसके पहले हम क्या करना है परमेश्वर के पास That means before that we have to go to God. जाना है कि नहीं। Yes or no? वो दिन देखने से पहले परमेश्वर के पास जाना है। That means before seeing those days, you have to go to God. हालेलुया। Hallelujah. पर एक कंडीशन है परमेश्वर के जाने की। But to go there is a condition. हम हर कोई परमेश्वर के पास जा सकते हैं क्या? Yeah, everyone can go to God. Is it like that? नहीं ना। No. तो परमेश्वर तक जाने के लिए नहीं, ऐसे क्या चीज है जो परमेश्वर तक नहीं जा सकता, वो मैं आपको पहला बताएगा। What is that you cannot go to God? आप लोग ये वचनों को आपके अंदाज में पढ़ो, You read it as per your understanding. आपके लिए पढ़ो Read for yourself और आप खुद आपको जज करो। and you yourself judge. हालेलुया। Hallelujah. गैलेशियंस 5 में In the book of Galatians, chapter 5, 19 से लेके 21। now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentious, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hallelujah. हालेलुया। हम हिंदी में रीड करेंगे गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भेद, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, दाह, मांसपन, लीला पोड़ा और इनके जैसे और काम है। उनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वालों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना होंगे। हालेलुया। तो आप लोगों ने पढ़ लिया वो सब? हाँ, अभी आप लोग बोलो कितने लोग परमेश्वर राज में प्रवेश हो सकते हैं? मतलब आप लोग बोलते हैं कि ये सब आप लोगों ने नहीं किया, नहीं?
So you people are saying that you all have done none of the sins which is quoted here. Will you be able to enter? Are you all sure about it? एक बार ऑफिस से पढ़ लो, Read once again. फिर बाद में मुझे बोलो कि आप लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि उस वचन में परमेश्वर ये बोला है जो भी ये सब कार्य कर रहे In this word, God is saying, whoever is involved in such things, वो परमेश्वर राज्य में क्या नहीं हो सकते। what they cannot do, they cannot enter, they cannot inherit the kingdom of God. तो आप लोग फिर से, मैं आपको पूछूंगा फिर बाद में आंसर दो। I will ask you again, you all can answer. अभी बोलो कि पढ़ लिया आप लोगों ने? Have you all read it? हाँ, अभी बोलो कौन कौन परमेश्वर के राज्य में जा सकते? How many of you all can enter the kingdom of God? हाँ, कोई कुछ लोग ये सोचते रहेंगे, Some people are thinking, पास्टर बहुत सारा चीज परमेश्वर लिखना भूल गया लगता है, many things God has forgotten to और write. भी थोड़ा है, लगता है वो सब डाला ही नहीं। Some more sins हम are तो there which is ये सब not. तो छोड़ो, उसके ऊपर वाले लोग हैं। Apart from this also we have done many things. अगर आप लोग में से बोलते ना, बहुत जन होते ना, रहते थोड़ा देर, From you all, if some people are crooked, ये सब तो मैं नहीं किए हैं, मैं तो जाएगा आप राज्य में। I have not done these things, I would enter the kingdom. उन लोग के लिए मैं एक वचन रखा है, I have kept a word for them. 1 John 1:10। In the book of 1 John, chapter 1, verses 10. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. हालेलुया। Hallelujah. Let's read एक युवन्ना में। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। ये हम बोल ही नहीं सकते कि हम पाप नहीं किए। We cannot say that we have not sinned. उसमें से वो जो भी आप पढ़े रहेंगे ना, Whatever you would have read, आप एक पाप नहीं किए रहेंगे, you would have not done one पर दूसरा sin, पाप किए but you रहेंगे। would have done some other उसमें से sin. कोई एक भी पाप किया तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। If there is any one sin you have done, you cannot inherit the kingdom of God. हम तो उसको ही डबल, उससे ही भी आगे वाला पाप भी करके बैठे। We are here people who have done more than that. ऐसे परमेश्वर के सामने एक आया था, There was a man who came in front of मैं God. परमेश्वर में ये पाप ने किया, मैं सब देखा, ये किया वो किया बोला। He came and told God, I kept all your commandments, I have not sinned and done any sin. तो परमेश्वर बोला अच्छा वेरी गुड यार, Then God replied, then that is a good तो एक thing. काम कर, तेरा सब बेच के ना मेरे पीछे आ जा। He said that you sell everything of yours and come behind. मुंह उदास हो गया। He felt हालेलुया। he felt disappointed and sad. पूरा जो सब बोलता, मैं पाप का लिस्ट है 10, वो सब मैंने फॉलो किया, He said, the 10 commandments I have followed, और जब आया था देने का, and when it came to giving, मुंह छोटा हो गया। he was वो disappointed. एक ही बंदा था परमेश्वर को देखने बाद भी मुंह छोटा करके गया। He was the only man whose face got disappointed. परमेश्वर से आप लड़ नहीं सकते, You cannot fight with God. उनको आप मैं अच्छा बोल नहीं सकते। You cannot say that I am good to him. जब भी ऐसा कोई बोलता है ना Whenever someone says that I am good, कि God, मैं बड़ा, I am good, वो खत्म हो जाता है। they come to an end. तो फिर हमारा ये क्वेश्चन है, Then the question is, तो जाएगा कौन? then who goes? हाँ, जाने का है ना, We have to inherit. ऊपर स्वर्ग में आने के, नरक में आने के। You want to go to heaven or you want to? ऑलरेडी एक नरक में है, वो अलग बात है, That already you are in a hell of life. वो अलग वाला है। That is a different सोचो story. ये वाला नरक ही तुम संभाल नहीं पा रहे, If you are not able to handle this hell, पीछे वाला जो सही में वाला है, जो नरक है, where there is real fire, real hell, वो तो भी बर्दाश्त नहीं होएगा। you won't be able to bear it. तो नरक बहुत जी लिया, We have lived hell a lot. अब थोड़ा स्वर्ग भी जी लेते। Now we have to go to heaven. हालेलुया। Hallelujah. तो हमारा लाइफ स्वर्ग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, So our life to be in heaven is very important. परमेश्वर के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट। It is very important to be with God. तो इसका रास्ता क्या है? So what is the way for it? ऐसा तो चाहिए ना, We need a way, क्योंकि right? जो परमेश्वर ने जो लिखा है वो तो हम सब कुछ कर दिए इसमें। What God has written, we have done all types of sin. हालेलुया। Hallelujah. ये तो कंफर्म है कि वो जो लिखे उसके अनुसार मैं नहीं जा सकता, One thing is sure that what He has written, I cannot live as per that. पर But मुझे नरक नहीं जाना, I don't want to go to hell. मुझे स्वर्ग जाना। I want to go to heaven.
तो एक ही उसका उपाय है। There is only one way. उपाय जानना चाहते हो क्या You है? want to know the solution? कितने लोग को जानना चाहते हैं How कि many of you want to know स्वर्ग the जाने का एक solution? रास्ता चाहिए यार। That I want to know the way to go क्योंकि to ये सब तो मैं है ऑलरेडी। I am already into all these kind of sin. अगर परमेश्वर अगर ये सब सोच के मेरे को अगर आपने नहीं लिए If तो फिर मैं नरक thinking- चले जाएगा If God judges me from this angle, I would definitely go to और heaven. मुझे नरक नहीं जाना। And I don't want to go मुझे to स्वर्ग heaven. जाना। I want to go to heaven. तो उन लोग के लिए ये वचन दे रहा हूँ। So I'm giving a word for them. जॉन 3:3 में In the book of John, chapter 3, verses 3, let's read. Jesus answered and said to him, हाँ Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. हालेलुया। Hallelujah. हिंदी में रीड करेंगे। उसने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एक परमेश्वर अगर कुछ बोला तो वो सच है कि नहीं सच है? When God says a thing, it is true or not. वो बोलेंगे वही सच है। Whatever He says, it's true. हालेलुया। पर परमेश्वर ने इस वचन में But in this word, 2 बार लिखा है मैं सच सच बोल रहा हूँ। He is saying surely, surely. ये क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या? Why is He saying it? ये अगर तुम लोग भटक गए रहेंगे ना किधर यहाँ से, If you're lost, तो ये वचन पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कोई तो एक इस चीज को स्टैम्प मार दिया है। when you'll read this, you should understand that this word is sealed ये and जो stamped. वचन में ना एक सच्चाई है वो और बहुत सच्चाई है इसमें। This word carries the truth and God reiterates इसके it. परमेश्वर 2 बार बोला कि भाई सच 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 बोल रहा हूँ God is reiterating and saying और it सच twice. सच ये बोल रहा हूँ, And He's saying, अगर तू यदि कोई फिर से नहीं जन्मा, if you do not get born again, क्या यदि कोई नई सिर से ना जन्मे, फिर से नहीं जन्मा ना तू, परमेश्वर का राज्य को तो परमेश्वर राज्य क्या नहीं देख नहीं सकता। so God is saying, unless one is born again, he cannot see the kingdom of तो God. उनका सिंपल बोलने का मतलब ये है, It's very simple what He wants to say. अब हम सब पाप में, Now we all are into sin. हालेलुया, सब पाप में, We all are into हमारी कोई लायकी नहीं है कि हम परमेश्वर के पास जा सकते। We are not worthy that we should go to God. पर परमेश्वर ये बोल रहे, But God is saying, अगर तू फिर से जन्मा ना if you are born again, तो तू जा सकता है। then you can go. तो इसका मतलब पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा It हूँ। is not talking about a real life. आज हम सबको, Today, we all, आज का जो मनुष्य है the man what we are today, उसको मार के, we have to kill him, उसको छोड़ के we have to leave him, एक नया मनुष्य बनना है। we have to become a new man. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप लोग को नया मनुष्य बनना है आज And if you want to be a new man, और स्वर्ग में जाना है, and if you want to go to heaven, तो उसका एक ही उपाय है। then there is only one हमें एक solution. नया मनुष्य बनने का सिर्फ एक ही उपाय है There is only one solution. और सिर्फ परमेश्वर ही वो उपाय दे सकता And God can give you that है। आपको solution. नया मनुष्य बनना है, You want to be a new पुराने man? वाले को साइड में रखना है बस। You want to keep aside the old man? बहुत किया तूने, साइड में हो जा थोड़ा। You have done a lot of things in my life. Now go aside. हालेलुया। अब मुझे नया जिंदगी जीना है, I want a new life. मुझे नया चीज देखना है, I want to see new things. मुझे नया कार्य करना है। I want to do new things. अगर आपको ऐसा इच्छा है If you desire this, तो परमेश्वर आपको सही में वो चीज कराने वाला है। then God would indeed do those things. सिर्फ वो लोग उठ के खड़े हो जाएंगे Only those people stand up और मैं वचन पढ़ेंगे and we will read the word और परमेश्वर से सीरियसली विनती करेंगे and we will make this request to God. कि परमेश्वर मुझे एक नया मनुष्य बना दे आज। God, make me a new man. हालेलुया। Hallelujah. क्या बना दे? What? एक नया मनुष्य बना दे। You make me a new क्योंकि man. मैं ऐसा ही परमेश्वर ऊपर नहीं जा सकता हूँ, I cannot go this way to heaven. मैं ऐसे ही स्वर्ग नहीं जा सकता हूँ, I cannot go this क्योंकि way मैंने हर चीज किया है वो सब। because I've done all the things. परमेश्वर एक चांस मुझे चाहिए। But I need one chance. कितने लोग का आज एक चांस चाहिए How many of you all want a कि chance नया आदमी बन जाए, that I want to become a new ताकि man? हम नया आदमी बने That when we are a new तो हम man, स्वर्ग जा सकते, then we can go. क्योंकि वो बोल दिए। When He says, अगर वो बोल दिए तो वो कर देंगे। when He says, He will do it. हालेलुया। Hallelujah. तो नया आदमी बनने के लिए परमेश्वर क्या करना चाहते हैं वो आप ध्यान दो अभी, So focus on if you want to be a new man, what God desires from you, और हम प्रार्थना करने वाले। and then we will pray. लास्ट वचन पढ़ेंगे हम एजेकियल 36 में 26। In the book of Ezekiel, chapter 36, verses 26. Let's read. I will give you a new heart
I will give you a new heart and put a new spirit within and you. put a new spirit inside you. I will take the heart of stone Uh-huh. out of your flesh हाँ and give you a heart of flesh. हाँ Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. इन्हें बड़े मैं तुमको मैं तुमको नया मन दूंगा क्या देगा What would God give you? ये जो दिल है ना अपना The heart. यही परमेश्वर देखता है God sees the heart. ये दिल के अंदर ना बहुत सारा चीज छुपा हुआ है अभी So many things are hidden in our heart. बहुत सारा कड़वापन है रहस्य है बहुत सारा चीज है There are so many bitterness in our और heart. ये दिल रख के आप ऊपर जा नहीं सकते And with this heart, you cannot go to आज heaven. आपका दिल बदलना है Your heart needs to be क्योंकि आपका changed. दिल ना पत्थर का बन गया है। Because your heart is like a stone. क्या बन गया है What happened to your दिल heart? ना पत्थर का बन गया हमारा It is like a ना stone. इसमें कुछ इमोशंस है They do not have any ना इसमें कुछ emotions. फीलिंग्स है They do not have ना any इसमें feelings. कुछ काइंडनेस है They do not have any kindness. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होने गया What is the most important thing? तुम लोग को लगता है लव रहेगा ना You think it is love. वो तो दूर दूर तक नहीं है It is not there at all. सबसे इम्पोर्टेंट सैक्रिफाइस नहीं है First important thing is sacrifice. सैक्रिफाइस क्या है हिंदी में Kurbani. कुर्बानी नहीं तुम अपने आप को दूसरे के लिए कुर्बान कर ही नहीं सकते You cannot sacrifice your own self for दूसरे के someone. लिए दूसरे की खुशी के लिए आप खुद कुर्बान हो ही नहीं सकते For someone's happiness, you cannot sacrifice. हम में इतने उलझे हुए हैं We are so much lost into our own कि हमारा self दिल पत्थर का बन गया that our heart has become like a दूसरे लोग stone. कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है We are not worried about other people. और यही परमेश्वर बोला है That is what God is अंत talking. दिनों में सब जन हम ऐसे ही रहेंगे In the end days, everyone would be like और that. सेल्फ लवर बन जाएंगे They will be lovers of their own हमसे self. बढ़कर कोई नहीं They will say nobody is greater और than हमसे I. हम हमें कोई चाहिए भी नहीं And we say that we do not want anyone. हम अंत काल में हैं। We are in the end days. और अगर आपका हृदय आज नया हृदय नहीं बना If your heart is not renewed today, अगर आपको नया स्पिरिट नहीं मिला if you do not receive a new spirit तो today, आप परमेश्वर नहीं जा सकते you and I cannot go आप to heaven. में परमेश्वर की दर्शन नहीं कर सकते You and I cannot go to heaven. तो भले कोई भी एज रहो आप Whatever age you are, वो कितने भी टाइम से आप परमेश्वर के साथ रहो till whatever time you would have spent with God, आज एक नया हृदय यहाँ से लेके जाओ you have to take a new heart and go. कितने लोग का नया हृदय चाहिए आज How many of you all want a new नया heart? हृदय नहीं मिला If you do not have a new heart, सच बोल रहा हूँ आप परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकते you cannot worship the Lord. आपसे पैसा नहीं मांग रहा है He's not asking you money. आपसे कुछ नहीं मांग रहा He's है not asking you anything. आज आपको कुछ वो देना चाहता है He wants to give you a new heart. हमारा परमेश्वर लेने वाला परमेश्वर नहीं है याद Our God रखो is not a God who keeps on taking हमारा things. परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है He is a God who keeps on giving things. हालेलुया Hallelujah. क्या है हमारा परमेश्वर Who is our God? वो बोला कि मैं तुझे नया हृदय देगा He is saying, I'm giving you a new heart. किसके बदले में For what? जो तेरा पत्थर वाला दिल है ना Because you have a heart of stone. उसके बदले में नया In- दिल दूंगा Instead of that, I will give you a heart of flesh. एक नया स्पिरिट दूंगा He will give you a new spirit. और ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है And it's very important to take this. तो मेरे बहनों भाइयों My dear brothers and sisters, आज का दिन ना today, वेस्ट मत करो do not waste it. यहाँ से जाते वक्त And when you leave मैं from आप this लोग के लिए place, प्रार्थना करने वाला हूँ। I'm going to pray for you. आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करो You also are going to pray for इस me. देश के लिए प्रार्थना करो We are going to pray for a ताकि nation. नया दिल सबको मिले So that everyone receives एक a new नया heart. सोच मिले Everyone gets a new thought. और सुख और शांति बरकरार रहे And there is peace and joy in our nation. अगर देश में सुख और शांति नहीं है ना If there is no happiness and peace in our nation, देश खराब हो जाएगा then everything would be क्योंकि defiled. क्योंकि पैसा बढ़ जाएगा Because there would be much money, तुम्हारा जो आमदनी होता है ना आमदनी your salary, सैलरी हो गया वेज हो गया Wages. वो कम हो जाएगा it will reduce. और बाकी का सब सामान जो है ना लेना है And all the things, उसका भाव बढ़ जाएगा inflation would come. खाना का वांदे हो जाएंगे There would be scarcity in resources. हालेलुया Hallelujah. तुम एक बार छोटा सा कोई कुछ भी हो जाए एक डॉक्टर के पास चले जाओ If you go to hospital, anything affecting you, पूरा लूट के ले लेगा उसे। they will take the entire money from. चूस लेगा हालेलुया Hallelujah. मलेरिया में जितना खून चूसा नहीं रहेगा वो मच्छर ने How much mosquito would have not sucked such blood in उतना ही malaria? डॉक्टर चूस लेगा मलेरिया के नाम That पे much doctor would suck your blood. याद रखो और हमारे में पैसा भी नहीं है And we do not have. कितना उनका इंश्योरेंस है यहाँ पे How many of you all have life insurance, है mediclaim? हाँ।
मतलब कुछ चलेगा बोलते हैं Something you मैं have. पूछ रहे हैं I'm just asking. ये इंश्योरेंस का एक मेरे को बहुत बड़ा कॉमेडी लगता है I feel like laughing at एक this. लाइफ picture. इंश्योरेंस का रहता है ना One is life insurance. मतलब मैं इंश्योरेंस लूं That means I will take the insurance. मैं मरने के बाद After I die, कोई दूसरा भरता ही चबा रहा है it's so funny that after I die, ये someone कौन else सा will get the insurance money. हुआ? What type of insurance is that? मतलब मेरे लिए नहीं है कुछ That means तू nothing. मर जा हालेलुया हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है Our God is not like वो that. देने वाला परमेश्वर He's a God who gives. और फ्री में दे रहा है And He gives in free. तुम्हारा दिल है क्या तुम लोग को देख के तो ऐसा लगता नहीं किसका You दिल don't have a पत्थर heart. नहीं है ये बन गया है It's not even stone. वो अलग ही स्टील क्या मालूम वो It is like an iron. स्टेनलेस स्टील हो गया वो It is like iron and steel. स्टेनलेस स्टील को तुम मालूम है क्या स्टेनलेस स्टील को कुछ काट ही नहीं सकते तुम When it is a stainless steel, you cannot break it. वो स्टेनलेस स्टील खुद को ही रस्ट करने के बाद ही वो खुद को मिटा सकते हैं नहीं तो उसको कोई मिटा नहीं सकता It स्टील will rust its own self and then get exhausted. आप अपने आप को मिटा रहे You yourself are exhausting yourself. आपको मिटाने के लिए बाहर से कोई जरूरत ही नहीं Nobody is required from outside. हालेलुया Hallelujah. तो आज यहाँ पे जो भी है Whoever is standing और जो भी ऑनलाइन में सुने and the people who are listening to us एक online, नया हृदय ask for a new एक heart नया आत्मा and for a new एक spirit, नया सोच a new thought, एक नया लाइफ a new life, एक नया आरंभ a new beginning. ये सब यहाँ से लेके जाओ You take all these things and सेम वही फेस मेरे को मत दिखाओ don't show me the same old face. मैं थक गया हूँ I'm tired now. हालेलुया Hallelujah. पहला ब्रदर शेव व्यू करके एकदम ऐसा हीरो बन के आते थे First brother used to come, shave. हाँ बोला पास्टर आपको क्या बोलो छोड़ो अभी Now he's thinking in his mind. अलग चेत करके अलग हालेलुया Hallelujah. अच्छा है आओ चर्च में का You'll come to church और एक साथ रो हंसो and you'll be in unity, laugh, परमेश्वर का वचन लो take the word of God अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो and implement in your life, और and जितना खुशी आपको मिलेगा the happiness what you receive, वो दूसरे को भी बांटो यार give it to others. उससे बड़ा कुछ चीज नहीं है Nothing is much जिस दिन more. आपने दूसरे को हेल्प करने लग गए ना The day when you help others, उस दिन परमेश्वर आपको माफ कर देगा हर चीज के लिए God would forgive you for many things. लव से भी बड़ा मैंने डिस्कवरी किया है ऐसा I have discovered one thing bigger than love. वो सैक्रिफाइस होता That is है अगर sacrifice. आप कुर्बानी देनी शुरू कर देना If you start sacrificing, ये बकरे का कुर्बानी नहीं है I'm not talking पता about- चल रहा चालू हो गया आप लोगों को I'm not talking about goat sacrifice. कुर्बानी वो नहीं Not about that. अपने आप को दूसरे के लिए कुर्बान करना When you sacrifice yourself for अपने others. आप ना अभी कैसा है, एक अभी तो औरत लोग भी जॉब पे जाने लग गए Now women also started working. पहले के जमाने में आदमी लोग जाते थे First, only men used to work. आजकल औरत लोग जाते हैं आदमी लोग घर पे खाना बनाते हैं Now women starts working उल्टा and हो men गया। starts cooking. जमाना ऐसा हो गया कुछ नहीं कर सकते Things have changed. तो पहले के टाइम में In the beginning, एक आदमी ना a man, वो कुर्बान होता था अपना फैमिली के लिए he sacrifices himself for his family. हालेलुया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था It's very important. आजकल तो सब एक दूसरे के लिए कुर्बान हो रहे हैं Now everyone is sacrificing for each other, अपने अपने अंदाज से but with your own thought. तो ऐसा नहीं चलेगा It's not like that. आप लोग परमेश्वर को देखना है When you want to see God अगर परमेश्वर का काम करना है and when you want to work for तो God, आपका ये पुराना दिल को उठा के फेंको you have to take your old heart and throw ये it. पुराना सोच को लेके फेंको Take your old thought एक and नया throw it. हृदय यहाँ से लेके जाओ Take a new heart and go. हालेलुया Hallelujah. जिसमें क्रोध नहीं है There's no wrath. जिसमें गुस्सा नहीं है There's no anger. जिसमें चिड़चिड़ापन नहीं है There is no murmuring. जिसमें हर चीज को पॉजिटिव देखने वाला चीज हो Where there is so much of positivity और खुद में एक शांति बरकरार रहे and there is a peace from inside. ऐसा एक दिल चाहिए हमें We need a heart like that. हालेलुया Hallelujah. बस हो गया ना It's enough, right? थक गए Are you tired? थक गए कि नहीं Are you tired हाँ? or not? थक गए ना दुनियादारी से With the This- worldly things, लॉस से with the loss. ये सब चीजें थके कि नहीं Are you tired or not? अभी ये हृदय थका हुआ हृदय Now this heart is a और tired. बजने वाला है Nothing is left.
अभी लपटप जो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, The beats, what's happening ये is not happening. टप कर रहा है कि क्या कर रहा है खुद को ही मालूम है उसको। What it is doing, एक नया हृदय लेके जाओ you take a new heart जो and यीशु यीशु बोले वो, which says Jesus, और अपना Jesus, काम बनते रहे, and our works keep और on. जो काम के लिए आए वो काम बरोबर करके जाएंगे यार। And for what you are on earth, do that work and go. अगर आप लोग को आज नया एक हृदय चाहिए If you want a new heart today, तो परमेश्वर से आप विनती करना है you have to ask God और उनको पूछना है and you have to say कि मुझे एक नया हृदय दो। that give me a new heart. सब जन अपने आंखों को बंद करो Everyone close your eyes. और हो सके अपने आजू बाजू वाले का हाथ पकड़ लो, If possible, hold your hands of your neighbor ताकि एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइन बना रहे। so that there is a spiritual line. हमारा विनती सुनने वाला परमेश्वर, You are the God who hears our prayers. हमारा विनती सुनने के बाद हमें नया हृदय After hearing our prayers, we get a new heart और नया एक आत्मा, and a new spirit, एक नया एक आशीर्वाद, a new blessing, एक नया एक चंगाई, a new healing, एक नया एक रेवलेशन, a new revelation. हर चीज नया परमेश्वर आज देने वाला। Everything is going to be new what God is going आज to के बाद आप सेम आदमी नहीं रहेंगे, do. From today, you will not be the same person. आप again. में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, There would be a transformation क्योंकि आपका नया हृदय because your new heart, नया ब्लड फ्लो पंप करके दे देगा it will make flow of new blood in your veins. और नया ब्लड जब हमारे अंदर सर्कुलेट होएगा, When the new blood circulates within, नया चीज दिखाएगा, new things will be visible. बीमारी सब दूर हो जाएगा, Healings, there would be sickness will be out of you. आपका ये पुराना श्राप पाप ये सब आपको छोड़ के जाएगा, All your curses and sin will leave you. आप दूसरे के लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। You would be a blessing to others. मेरे बहनों भाइयों, My dear brothers and बस sisters, ये दुनियादारी में जी के हम अपने आप को नष्ट करके ले लिए you all have lived a worldly life and you all have destroyed और your हर lives. जगह धोखा ही मिला है, And everywhere you are being trapped. हर जगह परेशानी ही मिला है You हमें, have been cheated from every side. हर जगह हम जैसा चाहते हैं उसका ऑपोजिट ही हमें हर चीज मिला है। Whatever you desired, exact opposite things happen. आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, God wants to save you today. आपको परमेश्वर नया हृदय देना चाहता है, God wants to give you a new heart ताकि आप उसके साथ हमेशा 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 के लिए रहे। so that you are with Him always. हालेलुया। Hallelujah. जैसे आप अपने आप को सरेंडर करने वाले, When you surrender yourself to God, परमेश्वर आपका विनती, God hears your prayer. आपका विनती सुनने वाले, Your requests are heard by आपका Him. फैमिली को बचाने वाले, Your family is going to be saved by आपका Him. जनरेशंस को बचाने वाले, Your generations are going to be saved. आपका मिनिस्ट्री को बचाने वाला, Your ministry is going to be saved by Him. इस देश को परमेश्वर बचाने वाला, He is going to save this nation. और वो बहुत जल्दी आने वाला And it परमेश्वर। is going to be very soon. भले राहों में कोई भी कठिनाई रहने दो, No matter what thorns are there in your ways, आपको रुकना नहीं है, you should not wait. चलते जाना You है, have to just keep walking. चलते जाना है। You have to keep walking. सब बोलेंगे राहों में राहों में कोई भी कठिनाई रहने दो, कोई भी कठिनाई रहे, फिर भी हमें चलते जाना है, still we will walk. आगे बढ़ते जाना We है, will keep on walking. जीत के और बढ़ते जाना We है। will keep on walking. और मैं towards- परमेश्वर का बच्चा हूँ आज से। And I am the child of God. मुझे परमेश्वर नया हृदय दिया है, God has given me a new heart. मैं आज के बाद Today, रोऊंगा नहीं, I will not cry. दुखी नहीं रहूंगा, I will not be sad. परेशान नहीं रहूंगा, I will not be troubled. पर मैं परमेश्वर के राह में चलूंगा। But I will walk in the way of God. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे, कम ऑन ये तू विश्वास करना संसार के अंत अंत तक हो तेरे राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है,
आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो come on church, रुकना नहीं, चलते जाना, ओ यीशु, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत वो तेरे साथ है। मेरे बहनों भाइयों, My dear brothers and sisters, अगर आप लोग ने if you आज एक निर्णय लिए रहेंगे तो have made a decision today, परमेश्वर ये पुराना हृदय निकाल दो, परमेश्वर God take out this old मुझे एक heart, नया मनुष्य बना दो, make me a new man, एक नया हृदय दे दो, give me a new heart, आपका नया आत्मा दे दो। give me a new spirit. अगर आपने ये प्रेयर, अगर आपने सरेंडर करके अगर परमेश्वर के और आपने इसको दिए रहेंगे तो If you would have surrendered yourself and asked for God, तो परमेश्वर आपसे ये कहता है, God is saying to you, आप लोग सबको all, एक नया परमेश्वर ने हृदय दिया है। God has given a new heart to all. अगर आप ये भरोसा करते If you believe this, तो ताली बजा के परमेश्वर की एक महिमा then करो you'll clap your hands and receive कि it. परमेश्वर मुझे आपने एक नया हृदय दिया है, God, you have given us a new heart. मैं विश्वास करता हूँ। I believe it. परमेश्वर आपने मुझे एक नया आत्मा दिया है God, you have given a new spirit. और मैं विश्वास करता And I हूँ believe that. आज के बाद From today onwards, मेरा सोच अलग रहेगा, my thoughts would be different. मेरा प्रेयर्स अलग रहेगा, My prayers would be मेरे different. बातें अलग रहेंगी। My words would be different. आप मेरी सहायता करो। You help me, Lord. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू होली धन्यवाद स्पिरिट, परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपने समय दिया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। Millions of people are dying all over the world, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं परमेश्वर दुनिया में, but we are still alive फिर भी हम आज तक जीवित and हैं we are talking about you, Jesus. और हम आपके बारे में बातें कर रहे I हैं। know your coming is very soon हमें पता है कि आपका आना जल्द है and I'm waiting for that और हम इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, because you have given me a new heart, क्योंकि आपने हमें एक नया हृदय you दिया have है, given me a new spirit. आपने हमें एक नया आत्मा दिया है। But before you come, आप आने से पहले let me do the work what you have given to me. आपने जो काम हमें दिया है वो करने दो Let me go and preach the gospel परमेश्वर, आपके बारे में and सुसमाचार save all the souls, God, एंड जो आत्मा है उन्हें बचाने, so that not even one soul should go vain, God. एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए परमेश्वर। Bless all my brothers and sisters who have मैं gathered here हर एक भाई बहन जो यहाँ पर इकट्ठा हुए उन्हें आशीर्वाद करता हूँ, and the people who are watching through online. और जो हमें ऑनलाइन सुसमाचार सुन रहे हैं Let their life be transformed. उनका जिंदगी को बदल दो परमेश्वर। Let the losses get restored back again sevenfold, God. जो भी उन्होंने खोया है 7 गुना आप वापस देना परमेश्वर। Bless their families. उनके परिवार को आशीर्वाद, Bless their business. उनके जो बिजनेस है उससे आशीर्वाद, Bless their health, God. आप उनका जो सेहत है वो, Bless their vision. आप उनका जो विजन है योजना, Bless their anointing. उनका जो अभिषेक है उससे आशीर्वाद, Bless their ministry. उनके जो सेवकाई है वो आशीर्वाद। Again, the moment till we see each other, वापस हम मिलने तक protect their family, God. इन्हें सुरक्षित रखो, Protect them, God. उन्हें सुरक्षित रखो, Let their mind be renewed every day. उनका मन तन बदलने दो Let the परमेश्वर। grace flow every day. परमेश्वर आपका अनुग्रह बहने Let your दो, mighty hand be on us always, God. आपका सामर्थ हाथ हमारे ऊपर उतरने In दो। Jesus' almighty name, I raise this prayer. यीशु मसीह के नाम से Amen. मैं मांगता हूँ। Amen. आमीन। Amen. आमीन। We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated.
Here are simple ways to give.